Hello everyone. Welcome to all of you in FFB Live Chemistry classes. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंट टॉपिक पे 1 बाय 1 डिस्कशन चल रहा है, डिफरेंट वीडियोस और उसमें के जो लेक्चर हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, तो डिफरेंट टॉपिक पे हमने वीडियो भेजे हैं तुम लोगों को. दिस इज दी FFB लाइव केमिस्ट्री क्लासेस. उसके अलावा आगे के जो 3 वीडियोस होंगे वो नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इसी से रिलेटेड होगा. इससे जस्ट पहले के वीडियो में हमने ट्राइवियल सिस्टम और कॉमन नेम ऑफ द नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया, सारे पॉइंट इसमें डिस्कस किए. इस क्लास में हम आज IUPAC सिस्टम की बात करेंगे. IUPAC सिस्टम से किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम लिखे जाते हैं. ये बहुत ही सिंपल मेथड है जिससे हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम आराम से लिख सकते हैं. तो आज के टॉपिक पे क्लास शुरू करते हैं. IUPAC सिस्टम पिछले क्लास में बताया था कि नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव 2 सिस्टम. 2 सिस्टम है, IUPAC और ट्राइवियल सिस्टम. तो ट्राइवियल सिस्टम में पिछले क्लास में जान चुके हो कि जनरल नाम कैसे होते हैं और किस तरह से रखे गए, और किस तरह से अगर कहीं जनरल नाम का भी यूज है तो उसको पहचान सकते हो कि कंपाउंड किस तरह से है. अब हम बात करेंगे IUPAC सिस्टम की. With the rapid growth of organic chemistry, it was realized that the nomenclature of fast increasing number of organic compounds should be related to their structure in a systematic manner as to avoid undue strain or memory. The first rational system of naming organic compounds are evolved in 1892 by the International Chemical Congress at Geneva under the name of Geneva System of Nomenclature. However, the system could not be successfully applied to complicated and multifunctional organic compounds. This system was partially revised in 1931, and the revised system was referred to IUC system. Modification in this system have been made from the time to time by the International Union of Pure and Applied Chemistry. This is the IUPAC, and its present form, the system is known as IUPAC system, pronounced as IUPAC. It is the most modern and largely used system. This system has been evolved in 1957, and some additions and subtractions were done in 1967. The IUPAC system has set rules for naming organic compounds on the basis of their structure. These rules underwent further modification in 1979 and later revised in 1993. A guide to IUPAC nomenclature of organic chemistry by R. Panico, W. H. Powell, and J.C. Richer. The name assigned on the basis of latest IUPAC rules to the organic compound is known as its systematic name. Now, salient feature of IUPAC system. A given compound can be assigned only one name. A given name can clearly direct in writing of one and only one molecular structure. The system can be applied in naming complex organic compound. The system can be applied in functional organic compounds. This is a simple, systematic, and scientific method for nomenclature of organic compounds. Now, basic rules of nomenclature. For naming simple aliphatic compound, the normal saturated hydrocarbons have been considered as the parent compounds and the other compounds as their derivatives.
obtained by the replacement of one or more hydrogen atoms with various functional groups. Easy systematic name has two or three of the following parts. First is root word, second primary suffix and third secondary suffix. तो ये थ्री पार्ट्स को मिलाकर के किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखा जाता है. The systematic name has two or three of the following parts: root word, prefix, primary suffix and secondary suffix. Now root word. The basic unit is a series of root words which indicate linear or continuous chain of carbon atoms. Chain containing 1 to 4 atoms are known by a special root word, while chains from C5 onwards are known by Greek number roots. When chain contains one carbon, this root word is meth. When carbon is 2, this is known as 8 से start होगा नाम इसका. When chain contains C3 carbon, this is prop. When chain contains 4 carbon, this is root word क्या होगा इसके लिए but. 5 कार्बन होंगे तो पेंट, 6 के लिए हेप्ट, 7 के लिए हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए टेक. उसके बाद और आगे भी कर सकते हैं हम. C11 है, C11 तो अनडेक. C12 है अगर कार्बन चेन में कार्बन नंबर 12 है तो डोडेक. 13 है तो ट्राइडेक. 14 है तो टेट्राडेक. 15 है तो पेंटाडेक. 16 हेक्साडेक. 20 ईपीकॉस एंड C30 है तो ट्राइकॉन्ट. C40 टेट्राकॉन्ट. इस तरह से नंबर ऑफ कार्बन एटम से रूट वर्ड निकलता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उसका नेम कहाँ से शुरू होगा. In general, the root word for any carbon chain is ALK. यानी alkanes का नाम सबसे है, parent हाइड्रोकार्बन है alkane. तो रूट वर्ड फॉर एनी कार्बन चेन इज एल. उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम से हम इनमें से कोई नाम, जो जितने की कार्बन एटम होते हैं उससे हम ये नाम देते हैं. Now primary suffix. Primary suffixes are added to the root word to show saturation or unsaturation in carbon chain. Saturation and unsaturation means saturated carbon chain, nature of carbon chain C single bond sing होगा. This is the saturated chain. The prefix एन, तो 2 कार्बन है तो 8 प्लस एन एथेन हो जाएगा. और जनरल नाम क्या हो जाएगा, एन लगा देंगे तो ये एल्केन. अनसेचुरेटेड विद 1 डबल बॉन्ड होगा तब इन लगेगा, इसके लिए प्राइमरी सफिक्स होगा इन. जबकि सी सिंगल बॉन्ड सी के लिए प्राइमरी सफिक्स होगा एन. आईयूपीएसी नाम एल्केन हो जाएगा. और अनसेचुरेटेड जो कि डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच तो इन लग जाएगा एन की जगह, तब ये नाम नेम हो जाएंगे एल्कीन. सी ट्रिपल बॉन्ड सी जब होगा अनसैचुरेटेड विथ 1 ट्रिपल बॉन्ड, देन एन की जगह आइन आ जाएगा और हाइड्रोकार्बन का नाम होगा एल्काइन. नाउ अनसैचुरेटेड विथ सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड्स, अनसैचुरेटेड विथ 2 सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड, देन क्या होगा, इसके लिए जो प्राइमरी सफिक्स होगा वो डाइन होगा तो जनरल नेम हो जाएगा एल्काडाइन. तो हम कार्बन नंबर गिन करके, जैसे अगर 2 कार्बन एटम है तो ये एथेडाइन हो जाएगा. अनसैचुरेटेड विद 2 सी ट्रिपल बॉन्ड तो डाइआइन लगाया जाएगा, इसके लिए प्राइमरी सफिक्स, और जनरल नेम हो जाएगा एल्काडाइआइन. उसके बाद अगली कंडीशन अनसैचुरेटेड विद 3 डबल बॉन्ड देन एरीन. This is known as एट्रीन, not एरीन, एट्राइन. दिस इज एल्काट्राइन. तो इस तरह से हम प्राइमरी सफिक्स किसके लिए यहाँ पे देख रहे हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए. तो प्राइमरी सफिक्स आर एडेड टू द रूट वर्ड. रूट वर्ड के साथ प्राइमरी सफिक्स को जोड़ देते हैं तो हमें सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम मालूम होते हैं.
तो रूट वर्ड के साथ एन जोड़ा तो एल्केन, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो रूट वर्ड प्लस इन एल्कीन हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, वन ट्रिपल बॉन्ड, तो एल्केन में आइन लगा दिए तो प्राइमरी सफिक्स रूट वर्ड के साथ आइन लग जाएगा तो ये एल्काइन हो जाएगा। अब अनसेचुरेटेड विद टू डबल बॉन्ड तो डाइन लग जाएगा, अनसेचुरेटेड विद टू ट्रिपल बॉन्ड तो डाई आइन लग जाएगा, तो जनरल नेम हो जाएगा। These are the primary suffix। ये saturation और unsaturation को compounds के बताता है। Unsaturated with 3 डबल बॉन्ड हो जाएगा एट्राइन और एल का ट्राइन। तो इस तरह से नाम लिखेंगे। अब सेकेंडरी सफिक्स, सफिक्स इज एडेड आफ्टर द प्राइमरी सफिक्स टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप। अब जब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, प्राइमरी रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स सब यूज करते हैं। ये सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए होता है? पार्टिकुलरली फंक्शनल ग्रुप इन द कार्बन चेन आर नोन एज सेकेंडरी सफिक्स। अब जैसे कि एल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप इसका जो होता है OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स होगा ऑल। एल्डिहाइड CHO ग्रुप जब प्रेजेंट होगा तो अल लगाएंगे सेकेंडरी सफिक्स। तो नाम कैसे लिखेंगे? रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। तो मान लीजिए रूट वर्ड एथ है और उसकी जो प्राइमरी सफिक्स है एन है, तो एथ एन, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स ऑल जोड़ देंगे तो एथेनल हो जाएगा। एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए होगा सी डबल बॉन्ड ओ जब प्रेजेंट है तो ओन लगाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हो जाएगा ओइक एसिड, सल्फोनिक एसिड के लिए सल्फोनिक एसिड, SO3H जब लगा होगा, एमीन यानी NH2 लगा होगा तो एमीन लगाएंगे, सेकेंडरी सफिक्स हैं ये सारे। थायो एल्कोहल SH होगा तो थायोल, साइनाइड CN होगा तो नाइट्राइल, ईस्टर COOR देन ओएट, एमाइड होगा CONH2 तो एमाइड लगाएंगे, और एसिड हैलाइड COX तो ऑयल हैलाइड सेकेंडरी सफिक्स होगा। The terminal E of the primary suffix is usually removed before attaching the secondary suffix। तो रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स बना के जो नेम बनता है उसमें से ई हटा के हम सेकेंडरी सफिक्स जोड़ देते हैं अगर फंक्शनल ग्रुप वहां प्रेजेंट होता है। To illustrate the application of above basic rule, the IUPAC names of few classes of organic compounds are here. Now, see alcohol. Root word एल्क होगा, इसके लिए सेचुरेटेड, यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स एल्कोहल के लिए हो जाएगा OL, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? नेम ऑफ द कंपाउंड इज एल्केनॉल। नाउ एल्कोहल अनसैचुरेटेड होगा, यानी वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस एल्कोहल, कार्बन कार्बन के बीच वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट, देन एल्क प्राइमरी सफिक्स इन, और क्योंकि डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स इन होगा और सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा ऑल, नेम हो जाएगा एल्कीनॉल। एल्कोहल सैचुरेटेड वन ट्रिपल बॉन्ड एल, रूट वर्ड प्राइमरी सफिक्स आइन, ट्रिपल बॉन्ड है, और सेकेंडरी सफिक्स ऑल तो हो जाएगा एल्काइनॉल। उसके बाद है एल्डिहाइड, यानी सैचुरेटेड कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही होगा और फंक्शनल ग्रुप होगा CHO, तो रूट वर्ड एल्क, प्राइमरी सफिक्स एन एंड सेकेंडरी सफिक्स एल्डिहाइड के लिए अल तो हो जाएगा एल्केनल। इसी तरह कीटोन सैचुरेटेड होगा, यानी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड और CO ग्रुप प्रेजेंट, देन रूट वर्ड एल्क, प्राइमरी सफिक्स एन एंड सेकेंडरी सफिक्स फॉर केटोन्स ओन लग जाएगा एल्केनोन। कार्बोक्सिलिक एसिड सैचुरेटेड, सैचुरेटेड मीन सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच, एल्क, रूट वर्ड प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, दिस इज एल्केनोइक एसिड। एसिड क्लोराइड, इसके लिए भी सैचुरेटेड है, एल्क एन प्लस ओइल क्लोराइड, IUPAC नेम हो जाएगा एल्केनोइल क्लोराइड। तो ये जनरल नेम है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन ऑफ एटम, कार्बन एटम, इनके नाम हम डिसाइड करेंगे। नाउ प्रीफिक्स,
It should always be kept in mind that alkyl group forming branches of the parent chain are considered as side chains. It should always be kept in mind that alkyl group forming branches of the parent chain are considered as side chain. The atoms or groups of atoms such as fluoro, chloro, bromo, iodo, nitro, nitroso, this is nitroso, and alkoxy are referred to as substituents. Root words are prefixed with the name of the substituents or side chain. Now, arrangement of prefixes, root word, and suffixes. These are arranged as follows while writing the name prefix plus root word plus primary suffix plus secondary suffix. For example, this is the compound. कार्बन, कितने कार्बन है इसको हम नंबर डाल के दिखाते हैं कि कितने कार्बन इस कंपाउंड जो चेन है कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की उसमें कितने कार्बन है, मेन चेन है ये। तो इसमें अगर इस तरह का COOH ग्रुप है, CHO है, तो इसका कार्बन हमेशा फर्स्ट नंबर होता है। फिर 1 2 3 4 कार्बन, थर्ड कार्बन से यहाँ ब्रोमो ग्रुप लगा है। यहाँ प्रेफिक्स क्या है, ब्रोमो एट पोजीशन 3। root word is bute because 4 carbon is present here. Primary suffix in because single word present between the carbon atom, and secondary suffix this is acidic group तो ओइक एसिड। अब सबको मिला करके नेम ऑफ द कंपाउंड क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो, उसके बाद ब्यूट एन नोइक एसिड। इस तरह से नाम लिखा जाएगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। क्या होगा, प्रेफिक्स यानी जहां पे साइड में चेन लगी हुई है, दिस इज द प्रेफिक्स, उसकी पोजीशन बताएंगे कार्बन चेन में। उसके बाद हो जाएगा रूट वर्ड, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, सबको जोड़ करके इस तरह से नेम लिखा जाएगा। अब सेकंड एग्जांपल, ये सेकंड एग्जांपल है CH, यहाँ से इधर जिधर फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उधर से हम कार्बन चेन में नंबरिंग करते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ OH ग्रुप लगा है, फिर 2 3 4 5। प्रेफिक्स 4 कार्बन पे methyl group is attached with 4 carbon. Now prefix methyl at 4 position, 4 methyl, root word 5 carbon है, pent, primary suffix in because double bond is present in second with the second carbon, and secondary suffix all, OL all because OH is present। तो नेम क्या हो जाएगा कंपाउंड का, थोड़ा सा छोटा ही कर ले, तो नेम क्या हो जाएगा इसका, 4 मेथिल, उसके बाद पेंट 5 कार्बन है, 2 इन दूसरी पोजीशन पे, डबल बॉन्ड है 2 इन और 1 ऑल। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 4 मेथिल, इसको यहाँ देखो, 4 मेथिल 2 इन पेंटेनल, सीधा 4 मेथिल, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 मेथिल पेंट हो जाएगा ये, 2 इन 1 ऑल, या 4 मेथिल 2 इन 1 पेंटेनल, दोनों ही नाम हो सकते हैं। The name of simple aliphatic organic compounds containing only straight chains of carbon atom of various homologous series are described in the following table as to explain the basic rule of IUPAC system. In case of compounds other than hydrocarbons, only the saturated compounds have been considered. Now, the name of the simple aliphatic organic compounds containing only straight chain of carbon atom of various homologous series are described in the following table. See here. Yes. यहाँ क्या है,
पैराफिन्स, होमोलोगस सीरीज, पैराफिन्स और एल्कीन्स होमोलोगस सीरीज पढ़ चुके हो। फर्स्ट मेंबर इसका क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मेंबर तक दिए हैं पैराफिन से। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला है ये, एक कार्बन है तो रूट वर्ड मेथ, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स नहीं है यहाँ पे, तो ना नेम आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, मीथेन। सेकंड मेंबर है पैराफिन सीरीज का, होमोलोगस सीरीज, 2 कार्बन प्रेजेंट हियर, तो रूट वर्ड एथ, प्राइमरी सफिक्स एन, दिस इज एथेन। थर्ड मेंबर 3 कार्बन प्रेजेंट, प्रो इन प्रोपेन। उसके बाद फोर्थ मेंबर है ये 4 कार्बन प्रेजेंट इन स्टेट चेन, रूट वर्ड ब्यूट, the primary suffix "ane" and name of the compound is butane। उसके बाद ओलिफिन्स और एल्कीन्स जिसमें कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, रूट वर्ड एथ, प्राइमरी सफिक्स "ine" and this name of the compound is ethene। second member, number of carbon atom 3, this is pro, primary suffix "ene", this is propene। third member bute, 4 carbon atom and primary suffix is "ene", root word bute, primary suffix "ene", this is butene। उसके बाद है ट्रिपल बॉन्ड, कंपाउंड कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, एसिटिलीन और एल्काइंस, जनरल फार्मूला है इनके। फर्स्ट मेंबर 2 कार्बन, रूट वर्ड एथ and primary suffix "ine", this is ethyne। second member 3 कार्बन atom with triple bond, the root word pro, प्राइमरी सफिक्स "ine", दिस इज प्रोपाइन। अगला मेंबर 4 कार्बन है यहाँ पे, तो जहां इस तरह के कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड जिस कार्बन के साथ लगा होता है उसकी पोजीशन भी लिखते हैं। तो रूट वर्ड ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स "ine", दिस इज ब्यूटाइन। 1 और ब्यूट 1 आइन, 1 कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है। अगला मेंबर है ब्यूट का ट्रिपल बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ है, तो ये हो जाएगा ब्यूट प्लस आइन, यानी प्राइमरी सफिक्स आई, दिस इज ब्यूट टू आइन। इसी तरह यहाँ भी कर सकते हैं, ब्यूट टू इन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और यहाँ पहले कार्बन के साथ, तो ये हो जाएगा ब्यूट 1 इन, इसको ब्यूटीन 1 या ब्यूटीन 2, इसे ब्यूटाइन 1 और ब्यूटाइन 2 भी लिख सकते हैं। नाउ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, अब यहाँ सेकेंडरी सफिक्स भी लगा होगा। Here CH3OH, number of carbon is 1, then root word meth, primary suffix "ane" and secondary suffix "ol", this is methanol। second member 2 carbons present here, so root word "eth", primary suffix "ane", secondary suffix "ol", this is ethanol। 3 carbon atom present, then root word "pro", primary suffix "ane", secondary suffix "ol", this is propane। 1 ol because OH attached with first carbon। दूसरे केस में 1 2 3 carbon is present here, but OH is attached with second carbon। now propane ol, यानी root word pro, primary suffix "ane", secondary suffix "ol", second carbon से OH लगा हुआ है, तो propane to ol। अगला मेंबर 4 कार्बन है, तो रूट वर्ड ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स "ane", सेकेंडरी सफिक्स "ol", दिस इज ब्यूटेन 1 ol। तो यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स है, यहाँ प्राइमरी सफिक्स है, यहाँ रूट वर्ड है। अगला मेंबर इसी तरह से, अब OH ग्रुप पोजीशन यहाँ बदल गया, यहाँ फर्स्ट कार्बन के साथ ऑल लगा था, यहाँ सेकेंड, तो इससे हो जाएगा ब्यूट टू ऑल। अब आ जाते हैं एल्डिहाइड, CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा इसमें, 1 कार्बन है, तो रूट वर्ड मेथ, प्राइमरी सफिक्स "ane", सेकेंडरी सफिक्स "al", तो हो जाएगा मेथेनल। सेकंड मेंबर के लिए एथ, 2 कार्बन, इसके कार्बन को भी काउंट करते हैं, तो 2 कार्बन है तो एथ एन अल हो जाएगा। 3 कार्बन प्रोप एन अल प्रोपेनल हो जाएगा। 4 कार्बन है तो ब्यूट एन अल ब्यूटेनल हो जाएगा। इस तरह से नाम लिखेंगे। उसके बाद है कीटोन, कीटोन में OCO ग्रुप प्रेजेंट होता है। इन द फर्स्ट मेंबर 3 कार्बन, देन दिस इज
root word pro, primary suffix "-ane" and secondary suffix "-one", this is propanone. Next member, here number of carbon atom 4, then root word "but", primary suffix "-ane", secondary suffix "-one", this is butane 2-one because CO group is at with second carbon. Here carbon atom 5, now pentane 1, pentane 2-one, root word प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स नाम हो जाएगा पेंटेन 2-one बिकॉज सेकेंड कार्बन पे CO ग्रुप प्रेजेंट है। इसी तरह से ये है यहाँ पे थर्ड कार्बन पे CO ग्रुप प्रेजेंट है, देन पेंटेन ऑन एंड नेम हो जाएगा पेंटेन 3-one। अब है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, रूट वर्ड एक कार्बन है यहाँ तो मेथेनोइक एसिड हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। 2 carbon is here with COH group. The root word 8, primary suffix "-ane", secondary suffix "-oic acid". This is ethanoic acid. And this is propanoic acid, propanoic acid, butanoic acid, butanoic acid. इसी तरह नाम लिखते जाएंगे। एसिड क्लोराइड RCOCl जब लगा होगा 2 कार्बन प्रेजेंट है तो 8, रूट वर्ड 8, प्राइमरी सफिक्स "-ane" and secondary suffix होगा oil chloride, this is ethanoyl chloride. 3 carbon propane oil chloride, propanoyl chloride. 4 carbon butane oil chloride, butanoyl chloride. उसके बाद है एसिड एमाइड RONH2 जब लगा होगा तो CH3CONH2 1 2 carbon. Now root word 8, primary suffix "-ane", secondary suffix amide, ethanamide. With 3 carbon propanamide, propanamide. With 4 carbon butanamide, butanamide. अब एमीन RNH2 ग्रुप जब होगा प्राइमरी एमीन होगा, 1 कार्बन मेथेन प्लस एमीन मेथेनेमीन, एथेनेमीन एथेन एमीन एथेनेमीन। उसके बाद जब 3 कार्बन प्रोपेनेमीन प्रोपेन, 1 एमीन यानी 1 कार्बन के साथ एमीन है, अगर बीच में आ जाएगा तो सेकंड कार्बन के साथ तो हो जाएगा प्रोपेन एमीन यानी प्रोपेन 2 एमाइन बिकॉज NH2 ग्रुप अटैच विद सेकंड कार्बन। उसके बाद है साइनाइड और नाइट्राइल RCN, तो 2 कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पे, 2 देयर इज 2 कार्बन 1 2 एथेन एंड नाइट्राइल एथेन नाइट्राइल, 3 कार्बन प्रोपेन नाइट्राइल प्रोपेन नाइट्राइल। इसी तरह ब्यूटेन नाइट्राइल ब्यूटेन नाइट्राइल। तो ये बहुत ही सिंपल है और बहुत आसान है, एक बार सिस्टम समझ लेने के बाद नाम आराम से लिखते चले जाओगे। उसके बाद है एल्किल हाइलाइट CnH2nX, इसका फॉर्मूला होता है CH3Cl यानी Cl ग्रुप लगा हुआ है तो प्राइमरी वर्ड मेथ, प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा "-ane", सेकेंडरी सफिक्स क्लोरो, क्लोरो ग्रुप लगा है, दिस इज क्लोरोमेथेन। When 2 carbon is present, root word 8, primary suffix "-ane", secondary suffix chloro, this is chloroethane. Now this is propane bromo bromo propane, this is propane bromo bromo 2 bromo। जब जिस कार्बन के साथ ब्रोमो ग्रुप जुड़ा होगा उस कार्बन का नंबर भी यहाँ पे लिखेंगे। नाउ ईथर CH3COCH3, रूट वर्ड मेथ इन, सेकेंडरी सफिक्स मेथॉक्सी, दिस इज मेथॉक्सी मेथेन। दूसरा मेंबर 2 कार्बन जो है ये मेन चेन में है और ये एल्कोक्सी ग्रुप है OCH3, तो 8 + "-ane" मेथॉक्सी ग्रुप है तो मेथॉक्सी इथेन, ये एथेन हो जाएगा 2 कार्बन से और ये मेथॉक्सी ग्रुप है। उसके बाद ये दूसरा मेंबर दोनों तरफ क्या है C2H5 है, 2 कार्बन इधर 8 "-ane" + एथॉक्सी, तो ये हो जाएगा एथॉक्सी इथेन। उसके बाद नाइट्रो कंपाउंड NO2 ग्रुप लगा है तो मेथ, रूट वर्ड "-ane", प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स नाइट्रो, दिस इज नाइट्रोमेथेन, दिस इज 8-ane नाइट्रो नाइट्रोएथेन, दिस इज प्रोपेन नाइट्रो, 1 पोजीशन पे नाइट्रो है तो 1 नाइट्रो प्रोपेन, सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो है तो 2 नाइट्रो प्रोपेन।
तो ये सारे नाम देखे, सारे कंपाउंड्स का करीब करीब इंक्लूड हो गए। अब आते हैं एस्टर। Esters are formed when hydrogen atom in the carboxylic group is replaced by an alkyl group. कार्बोक्सिलिक एसिड से जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस करके जो है R जुड़ जाता है, तब ये एस्टर बनता है। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एस्टर, COOR डैश। These are named as alkyl salt of parent acid. Their names consist of two words. The first word is the name of the alkyl group attached to oxygen atom. The second word is derived from the carboxylic acid name with ic acid chain to 8. Now methyl methanoate. इसका नाम होगा methyl methanoate. इसका होगा ethyl ethanoate. फिर से इसका देखो, the first word is the name of the alkyl group attached to the oxygen atom, the ethyl group attached to the oxygen atom. The second word is derived from the carboxylic acid name with acid chain 8, क्योंकि यहाँ से OH हटा यहाँ पे CH3 ग्रुप लग गया है, तो दिस इज द एथिल एथेनोएट नाम हो जाएगा इसका, क्योंकि इधर 2 कार्बन है, यहाँ कार्बन 1 है, तो दिस इज द मेथिल, जो कि मेथिल ग्रुप O से अटैच है, तो पहला नेम होगा मेथिल, और ये 1 कार्बन है मेथेनोइड। यहाँ एथिल ऑक्सीजन से अटैच है, एथेन 2 कार्बन है, ये हो जाएगा एथेनोएट। उसके बाद इसी तरह से ये है मेथिल, जो कि ऑक्सीजन से अटैच है, पहला नाम होगा इसका मेथिल एथेनोएट, 2 कार्बन है, ये CO और CH3। और इसी तरह से ये एथिल 3 कार्बन है यहाँ पे, तो एथिल प्रोपेनोएट। तो इस तरह से एस्टर के नाम लिखे जाते हैं। उसके बाद है एनहाइड्राइड, इनको इसलिए अलग से बताया गया है। Anhydrides are derived from acid by replacing OH with OCOR. Anhydrides are named by changing the suffix acid of the parent acid to anhydride. तो acid हटा करके यहाँ anhydride लगा देते हैं। बनते किस तरह से हैं? This is the carboxylic acid, RCOOH, OH replaced by OCOR group. It forms acid एनहाइड्राइड। तो नाम इसका क्या रखा जाएगा? इस तरह से एथेनोइक 1, ये क्या है? एनहाइड्राइड ग्रुप है, और यहाँ पे 2 कार्बन है, तो एथेनोइक एनहाइड्राइड, सिर्फ एसिड हटा के एनहाइड्राइड लग जाएगा। उसी तरह इधर ये हो जाएगा 1 2 3 कार्बन, तो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अगला एथेनोइक प्रोपेनोइक, दिस इज दी एथेनोइक, 2 कार्बन है इधर, एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो इस तरह से IUPAC नोमेनक्लेचर के कुछ सिंपल एग्जाम्पल थे, जो कि बेस है एक तरह से। जब ये सारे याद होंगे, पता होंगे और याद भी होंगे किस फंक्शनल ग्रुप के लिए और कब कहाँ क्या लगाते हैं, तभी डिसाइड होगा कि हम नाम उसका, किसी भी जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, उसका हम नाम इन रूल्स की मदद से लिख सकते हैं। तो आगे के क्लास में हम और भी डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेंगे नोमेनक्लेचर के विद IUPAC सिस्टम। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे बात करेंगे। आज का यही खत्म।